So the question here is, consider the combination circuit given below. So this is the circuit given here. The equivalent expression of FR, option A bar plus B bar plus C, option B, A plus B plus C bar, option C, under bracket A plus B plus C overall bar, option D, under bracket A bar into B bar into C bracket close overall bar. So here if you'll see that यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग A plus B का whole bar. This side it is B and this will become C bar. So this will become here B plus C bar का whole bar. So now this side, this F we can write it here. So this will become here A plus B का bar into B plus C का bar and their bar and then overall bar. So now if you apply the De Morgan's, then this can be written as A plus B bar of bar plus B plus C bar and their bar of bar. So as per the De Morgan's, we know that this can be written as A plus B plus B plus C bar. So ultimately this can be written as A plus B plus C bar. This can be rearranged in another way also, as like A bar into B bar into C ka whole bar. So now if you see that according to this option, because this is the MSQ question here, so this is matching with A plus B plus C bar. So this is matching with option B and this is matching with option D. So as like I can say that the final answer for this MSQ for this question is option B and D the correct answer, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider a 3-bit relative magnitude comparator. So this is the block diagram for this relative magnitude comparator. The number of input combinations for which A is greater than B, it means Y is equal to 1 is fill in the blanks. So यहाँ पे 3 बिट के बारे में जानने से पहले हम लोग सॉल्यूशन के डिटेल में पहले 1 बिट का देखेंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे. सो अगर हम लोग 1 बिट रिलेटिव मैग्नीट्यूड कंप्यूटर की बात करें और उसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर 1 बिट magnitude comparator, what we can write here, this is A naught, this is B naught, and here this is X. So X is 1 when A is equal to B, and Y is 1 when A is greater than B, and Z is 1 when A is lesser than B. यहाँ पर ये A naught ही हमारा A नंबर है, ये जो हमारा ये हमारा A है क्योंकि हम लोग 1 बिट का कंसीडर कर रहे हैं, और ये हमारा B है. तो यहाँ पर A नॉट B नॉट हमारा 2 इनपुट है, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1. अब अगर आप इसको देखेंगे कि ये दोनों को कंपेयर करता है, ये जो हमारा रिलेटिव मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है ये A और B नंबर को कंपेयर कर इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है. तो यहाँ पर A नॉट B नॉट का वैल्यू 0 0 है, तो X का आउटपुट क्या हो जाएगा? ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा. अब यहाँ पर है ये A नॉट है 0, B नॉट है 1, इसका मतलब A हमारा लेसर है B से, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0 0 1. फिर यहाँ पर जो तीसरा कॉम्बिनेशन है 1 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और A ग्रेटर देन B है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और जब ये 1 1 है इसका मतलब A इज इक्वल टू B, सो ये हो जाएगा 1 और बाकी ये हो जाएगा 0. सो ये तो 1 बिट का हुआ. सिमिलरली आप 2 बिट का भी डेवलप कर सकते हैं बाय टेकिंग A नॉट A1 B नॉट B1. तो यहाँ पर देखें कि अगर 1 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है तो हमारा फिजिकल इनपुट क्या है? 2 A नॉट B नॉट. सिमिलरली 2 बिट का होगा तो यहाँ पर फिजिकल इनपुट क्या हो जाएगा? 4, एज लाइक A नॉट A1 B नॉट B1. इसका मतलब है फॉर n बिट कंपैरेटर हमारा फिजिकल इनपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिजिकल इनपुट विल बिकम 2n. सिमिलरली फॉर दिस 2n हाउ मेनी कॉम्बिनेशन इट विल फॉर्म? सो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन is equal to 2 to the power 2n.
अब यहाँ पर बात आती है कि कितनी बार x1 होगा, कितनी बार y1 होगा, कितनी बार z1 होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये 1 बिट कर लेते हैं तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारा x1 है, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी x हमारा 1 है। मतलब कि जहाँ पर a और b का वैल्यू बराबर होगा वहाँ पर x हमारा 1 होगा। सिमिलरली अगर आप 2 बिट के लिए चेक करेंगे तो वो 4 बार आएगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं फॉर n bit this x is equal to 1 for how many times 2 to the power n times। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब 4 कॉम्बिनेशन में से 2 तो यूज हो गया x के लिए, अब बाकी का जो कॉम्बिनेशन बचा है लाइक 0 1 1 0, तो ये हमारा y और z में इक्वली डिवाइड होता है। कहने का मतलब है कि आधे कॉम्बिनेशन के लिए y1 होगा और बाकी कॉम्बिनेशन के लिए z1 होगा, अगर आप x के कॉम्बिनेशन को हटा लेते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल कॉम्बिनेशन हुआ 2 to the power 2n और जितनी बार x1 है वो हुआ 2 to the power n। अगर इस टोटल में से इसको माइनस कर लेते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा कि y और z कितनी बार 1 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं y is 1 when a is greater than b and z is 1 when a is lesser than b. For both this will be same. How many times it will become 1? That will be same. So यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2n minus 2 to the power n डिवाइड बाई 2। आप यहाँ पर ये जनरलाइज फार्मूला याद रखेंगे तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली n के वैल्यू को डालेंगे, वहाँ पे कॉम्बिनेशन का आउटपुट मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ये इतना कॉम्बिनेशन बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर आप इतना नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पर n के वैल्यू को 3 रखेंगे। ये जनरलाइज फार्मूला हो गया, इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में आसान होगा। ये भी एक जनरलाइज फार्मूला हो गया, ये भी एक टर्म्स हो गया। तो यहाँ पर n के वैल्यू को अगर आप 3 डालेंगे तो ये जो y है हमारा a ग्रेटर देन b और ये जो z है हमारा a लेसर देन b, ये दोनों आएगा 28 टाइम्स दिस विल बिकम हाई। मतलब सेपरेटली y विल बी 28 टाइम्स हाई एंड z विल बी ऑल्सो 28 टाइम्स हाई। तो क्वेश्चन में हमारा पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स y विल बिकम 1। तो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, दिस इज NET क्वेश्चन, सो दैट फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज 28. So by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is a half adder is made by the use of XOR gate and AND gate only as shown in figure. So this is half adder. To implement the following two boolean expression, P is equal to A XOR B XOR C, Q is equal to A bar into B into C plus A into B bar into C, the minimum number of half adder required is fill in the blanks. So यहाँ पर हाफ एडर को यूज़ करके ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हमको रियलाइज़ करना है, तो उसमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ हाफ एडर लगेगा वो निकालना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। सो ये सम क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा A XOR B और कैरी क्या हो जाएगा, तो कैरी होगा हमारा A इंटू बी। हमको यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे ये A XOR B को C के साथ XOR करना है। इसका मतलब कि एक और ऐसा हाफ एडर लेंगे जहाँ पर इस हाफ एडर का सम आउटपुट जैसा कि A XOR B है वो उसमें एक इनपुट देंगे और दूसरा इनपुट C देंगे, तो हमको P मिल जाएगा। Q के बारे में देखते हैं। सो Q के यहाँ पर अगर आप इन दोनों टर्म को देखेंगे तो C क्या कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A बार B प्लस AB बार इंटू C। सो यहाँ पर इसको और एलोबरेट कर सकते हैं A XOR B इंटू C। चलिए इसका थोड़ा डिटेल सर्किट देखते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा A XOR B जो फर्स्ट हाफ एडर के सम का आउटपुट है और यहाँ से हम लोग इनपुट लेंगे C, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से P हमको मिल जाएगा A XOR B XOR C। और दूसरा यहाँ पे पूछा है Q, so Q we got it there, that is A XOR B into C। so यहाँ से देखिए ये XOR B है, ये A XOR B है जो इसमें इनपुट है, ये इनपुट है और C यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा A XOR B into C। so यहाँ पर ये मिल गया P, ये मिल गया Q। ये आपको दिख रहा होगा कि फुल एडर टाइप का, लेकिन ये फुल एडर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये हाफ एडर का कैरी ये है फर्स्ट हाफ एडर का, सेकेंड हाफ एडर का कैरी ये है
और गेट लेकर के जब ये दोनों कैरी को मिलाते हैं तब फुल एडर बनता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द फुल एडर, इट इज़ नॉट द फुल एडर हेयर। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ था, अगर हम को रिलेट कर पाएँ वहाँ पे जो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट होता है तो उसके हिसाब से हाफ एडर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम इस फंक्शन को रिलेट कर पाए तो ये आसानी से क्लिक हो सकता है। ये कुछ भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, जो हम पढ़ते हैं उसी में से हमने को रिलेट करके इसको बनाया है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छे से बनेगा, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। सो बाय दिस वे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पी और क्यू फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना हाफ एडर चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ एडर रिक्वायर्ड इज 2। सो नंबर ऑफ हाफ एडर required is 2, so that here as this question is belonging to NAT, so the final answer for this question it will be 2। अगर दो हाफ एडर है तो आप P एंड Q को रियलाइज कर पाएंगे, जैसा कि हमने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया है। ये क्लिक हो गया, बस काम हो जाएगा आपका। So by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the logic circuit given below. So this is the circuit here. The required input conditions to make the output x is equal to 1 is option A is equal to 0, comma B is equal to 1, comma C is equal to 0. Option B, A is equal to 1, comma B is equal to 0, comma C is equal to 0. Option C, A is equal to 0, comma B is equal to 0, comma C is equal to 0. Option D, A is equal to 0, comma B is equal to 0, comma C is equal to 1. So here this is the NOT gate। तो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिलेगा, A बार, यहाँ से क्या आ रहा है B, so that this output will become A bar into B का होल बार। इस साइड से क्या आएगा, तो ये है हमारा B और ये है हमारा C। सो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को B बार इंटू C बार का होल बार। ये बबल का मतलब होता है नॉट गेट। सो नाउ दिस साइड दिस इज बबल्ड और विच इज इक्विवेलेंट टू नाइंड गेट। सो यहाँ पर x हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो लिख सकते हैं A बार इंटू B बार ऑफ बार plus B bar into C bar bar of bar. So as per the identities we know that this can be written as A bar into B, so this bar gets cancelled, plus B bar into C bar। अब यहाँ पर इस x को 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये कॉम्बिनेशन A बार इंटू B 1 प्रोड्यूस करे, या फिर B बार इंटू C बार जो कॉम्बिनेशन है वो 1 प्रोड्यूस करे, या फिर दोनों मिलकर 1 प्रोड्यूस करे। ये हमारा कंडीशन बनता है। तो यहाँ पर यहाँ से A बार इंटू B से 1 आने के लिए क्या होना चाहिए, तो A को 0 होना चाहिए, B को 1 होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ C। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, ये ऑप्शन में ऑप्शन ए में A इज इक्वल टू 0 है, B इज इक्वल टू 1 है, और किसी भी ऑप्शन में A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1 नहीं है। तो एक ऑप्शन ये हुआ A। अब उसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि B बार C बार। सो यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से 1 प्रोड्यूस होने के लिए B को भी 0 होना चाहिए, C को भी 0 होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ पर देखिए B का वैल्यू 0 है, यहाँ पर C का वैल्यू 0 है, यहाँ A का वैल्यू 1 है, ये रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे भी B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन B इज जस्टिफाइंग फॉर दिस टर्म, सेकेंड टर्म। ऑप्शन C is also justifying for this term and option A is justifying for A bar into B। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का, जैसा कि ये MSQ है, इसके हिसाब से राइट आंसर हुआ ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C। आप D के लिए चेक करना, इससे हमारा आउटपुट यहाँ पर 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। So the required condition is given in option A, B and C is sufficient to make this x is equal to 1। So the right answer for this question is option A and B and C। By this way this is the end of the explanation for this question। So the question here is, a half adder is connected to a 4:1 mux as shown in figure। So this is the mux here and this is the half adder here। The simplified expression for F is option A, F is equal to A XOR B, option B, F is equal to A XOR B, option C, F is equal to A plus B, option D, F is equal to A into B whole bar। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं आगे इसका डिटेल सॉल्यूशन। सो यहाँ पर पहला मेथड क्या कहता है, सो ये मक्स है हमारा और इसका इनपुट क्या है 0 1 1 0, और ये हाफ एडर है, इसका इनपुट है A और B,
और ये जो हाफ एडर का सम है वो मक्स के S1 लाइन से कनेक्टेड है और यहाँ पर कैरी S0 लाइन से कनेक्टेड है। सो दे आर आस्किंग अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर दिस एफ। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं इस टेबल को। तो यहाँ पे ये जब ए बी दो इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर ये जो ए बी इनपुट है ये यहाँ पर एज पर द ऑपरेशन ऑफ दिस हाफ एडर द आउटपुट ऑफ सम एंड कैरी इज कनेक्टेड टू द सेलेक्ट लाइन ऑफ दिस मक्स। तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, तो हाफ एडर का हम लोग जानते हैं सम क्या होता है 0 1 1 0 और कैरी क्या होता है 0 0 0 1। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट लाइन के स्टेटस के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट में आएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे 0 0 जब लेंगे सेलेक्ट लाइन तो यहाँ पर ये आई नॉट लाइन हमारा सेलेक्ट होगा और इसका इनपुट क्या है 0। सो आउटपुट में क्या मिलेगा 0। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर ये S1 है 1 और S0 है 0। इसका मतलब है कि I2 लाइन का सिलेक्शन होगा और I2 का इनपुट क्या है 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 1। उसके बाद हमारा यहाँ पर तीसरा है 1 0। सो 1 0 जब हमारा इनपुट है ए बी तो सेलेक्ट लाइन है 1 0। इसका मतलब I2 लाइन हमारा सेलेक्ट होगा और आउटपुट में मिलेगा 1। फिर चौथा कॉम्बिनेशन क्या है 1 1, ए बी है 1 1। तो उस समय में हमारा S1 S0 क्या मिलेगा 0 1। सो 0 1 का मतलब है कि ये I1 लाइन का सिलेक्शन होगा तो आउटपुट में मिलेगा उसमें 1। सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ये फंक्शन को दिस एफ इज इक्वल टू, हमको इसका मीन टर्म लिखना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बार बी। इसके लिए ये जो हमारा आउटपुट है तो ये इसके लिए 0 1 के लिए ए बार बी प्लस फिर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ए बी बार। हमारा मीन टर्म क्या क्या मिलेगा, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट हमारा F1 होगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी आउटपुट हमारा 1 होगा और इस कॉम्बिनेशन के लिए भी आउटपुट हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए बार बी प्लस इन दोनों टर्म में ए कॉमन है so we can write it here b bar plus b, so b bar plus b is 1, so this can be written as a bar into b plus a। अब अगर यहाँ पर ट्रांसपोजिशन अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं a bar plus a into b plus a, so a bar plus a is 1 1 into b plus a, we can write it here as a plus b। एक ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, अगर आप इस टेबल से नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये f क्या होगा, ये f हो जाएगा यहाँ पर मक्स के इनपुट में है 0 1 1 0। तो अगर आप पहले से ये जानते हैं मक्स के बारे में कि अगर 0 1 1 0 होता है तो f आउटपुट होता है हमारा S1 एक्सॉर विथ S0। और ये S1 क्या है, तो S1 है हमारा हाफ एडर का सम और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है a एक्सॉर b। और ये S0 क्या हो जाएगा, ये S0 है हमारा कैरी, तो हाफ एडर का कैरी क्या होता है ए बी। तो इस तरीके से हम इस f को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a एक्सॉर b एक्सॉर ए बी। अब इस रिजल्ट के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 8D में डिस्कस किया था और वहाँ पे हम लोग निकाले थे कि a एक्सॉर b एक्सॉर ए बी को लिख सकते हैं a प्लस b, और इस प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया था फॉर क्वेश्चन नंबर 25D भी। तो आप इससे पहले वो भी दोनों प्रॉब्लम को देख सकते हैं, बना सकते हैं। ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लियरिफाई हो जाएगा और 25D में इसका एप्लीकेशन भी दिखेगा, 30D में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। सो दोनों तरीके से आपको जो सूट करता है, जो ज़्यादा आसान लगता है उसको आप एडॉप्ट कीजिए, सीखिए सब, लेकिन प्रैक्टिस में लाइए वो जो आपको अच्छा लगता है। सो ये प्रॉब्लम कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, इस ऑप्शन को मैच करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट हमारा आया था f इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो यहाँ पर ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी से, जैसा कि हमने दिया है कि ये MCQ है, एक आंसर सही होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द रेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, योर ओपिनियन फॉर दिस क्वेश्चन, योर फीडबैक फॉर दिस क्वेश्चन। So by this way, this is the end of the explanation for this question.